Very good morning to all of you. Please bear with my little ill health. How wonderfully she introduced writers. We are like honeybees and we do this and we do that and we take from other people's experience and everything. But as writers and as parents, we are two different people. When it actually comes to treating your child, educating your child, raising your child, dealing with your child, it becomes so difficult for even us. All our experiences, all our knowledge, all our sensibilities, all our maturities, somehow it doesn't actually come to help you when you are dealing with your own child. And I think that happens to all of us. It's not just me, or it's not just you, or it's not just some XYZ person we are talking about. It's very, very important for all of us to first understand that on Sunday morning, after a hectic schedule of a complete week that we have spent 9 to 9, we are all here for what? What does a set of parents want? What do they want? Why are you here? You are here for betterment of your child, for a better relationship, for better growth of your child, for better mental frame of your child, for a healthy mind of your child, a better person that you are looking at, a better citizen that you really want to bring into. And I think all parents, I don't think a single person in this world, once a person becomes a parent, want to ever even once think anything against the child or child's future. हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पहुंचे, कुछ बने, एक अच्छा इंसान बने, कुछ अच्छा काम करे, जिंदगी में ऐसी जगह पहुंचे जहां उसे कोई तकलीफ ना हो. We all want to shelter, give a better future, better life, secured life to our children. And then what goes wrong? When your child becomes somewhere at teenage, the child turns back to you and says, you have not done enough for me. And this is for everybody. This is for me, or this is for you, or this is for anybody that we are talking about. Which language will you prefer? Should I talk in English or Hindi or Gujarati? Hindi. Sure. तो हम जहां पहुंचते हैं, 14-15 साल का बच्चा मुड़कर बता देता है कि आपने क्या किया. अब सब माँ बाप करते हैं. आपने ऐसा क्या खास कर लिया हमारे लिए? ऐसा क्या आपने हमारे लिए उखाड़ लिया इस दुनिया में? पैदा किया है तो बड़ा तो आपको करना ही है. और तब बहुत बुरा लगता है कि हमने रात भर जाग कर या ये करके या वो करके या क्या कम पड़ गया हमारे बच्चे को. Rajneesh has said a wonderful thing. I always told my father that he was wrong. And when I realized my father was right, I had my son to tell me the same. उन्होंने कहा कि I am on the better side of 40. And she has realized that you can change yourself. I am on a little higher side of a better side. And I have realized one thing, that you can't change anything in life, not even yourself. All you have to learn is to accept. एक बार आप बदलने की कोशिश करके देख लें, फिर आपको लगता है कि दूसरे नहीं बदलेंगे, खुद को बदलेंगे. फिर वहां आकर भी आपको समझ में आता है कि कुछ नहीं बदलेगा. अब स्वीकार करना सीख लें. और मुझे लगता है वो सबसे बेहतर जगह है जिंदगी की, जहां आप उस सारी चीजों को स्वीकार करते हुए चलते हैं कि ये जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, बस उसके साथ एक फ्लो में, सिम्फनी में, सिनर्जी में बहते जाए. संघर्ष न करें किसी से. और उस एज तक पहुंचते पहुंचते हम इतना संघर्ष करते हैं, खुद से, स्पाउस से, बच्चों से, दुनिया से, व्यवसाय से, कि एक बार ऐसा लगता है कि अब थक चुके.
एक्चुअली जब आपकी जिंदगी उस जगह पहुंचती है जहां आपके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, बच्चे बड़े हो गए, तब जाके आपको लगता है कि आप अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकेंगे। लेकिन उसी वक्त वो सारी कड़वाहट, वो सारी पीड़ाएं, वो सारे सवाल, वो सारी कंप्लेंट्स जो आपने अब तक शायद नहीं की, या की तो बहुत माइल्ड आवाज में की, या माइल्ड आवाज में नहीं की और झगड़ा किया, वो सब कुछ लौट कर वापस आ जाता है। और वही उम्र है आपके बच्चे की, टीनेज की, कि जब उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स झगड़ते रहते हैं। हर घर में दो लोग साथ रहना शुरू करते हैं, या तो प्यार करके या माता पिता मिलाते हैं। लग्न संस्था हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। लिव इन इज कमिंग very slowly, very firmly, piercing in our society, but at the same time, शादी के लिए आज भी हम सब वकालत करते हैं। हम सभी को लगता है कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में। जो लोगों की शादी फेल हो जाती है, या जिनको लगता है कि हमारी शादी फेल हो चुकी है, वो लोग भी कभी अपनी फेल हुई शादी के बारे में बात नहीं करते, मोस्टली, क्योंकि सबको लगता है कि अगर शादी फेल है तो जिंदगी फेल है। हम आज भी हमारी शादी के सक्सेस को हमारी व्यक्तिगत सफलता के साथ जोड़ते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा अपब्रिंगिंग है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो राइज करके ये बताएं कि नहीं यार, वी आर गुड पीपल, टू गुड पीपल टुगेदर, बट वी कुडंट लिव टुगेदर। और अगर आप ये बात को स्वीकार कर लेते हैं, अगर आप इस बात को एडमिट कर लेते हैं कि दो अच्छे लोग, इंडिपेंडेंटली दो अच्छे लोग एक साथ नहीं जी सकते, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी दो भाई बहन एक घर में बड़े होते हैं, फिर भी दो अलग लोग होते हैं। तो दो लोग जो अलग घरों में पैदा हुए हैं, अलग अपब्रिंगिंग से आए हैं, कंप्लीटली अलग मेंटल फ्रेम, मेंटल मेकअप के साथ हम तक पहुंचे हैं, या एक दूसरे तक पहुंचे हैं, वो कैसे एक से होंगे, वो कैसे एक सा सोचेंगे, वो कैसे एक सा खाएंगे, वो कैसे एक सा जीना सीख पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है जो बात, उसको हम एक आदर्श शादी बनाकर पेश करते हैं। हमें लगता है कि दो लोग जो एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा जीते हैं, दोनों के शौक एक है, दोनों की हॉबीज एक है, दोनों की जिंदगी जीने की स्टाइल एक है, दोनों की अच्छाई बुराई एक है, दोनों के दोस्त एक है, सब अगर एक सा है, तब दो लोग खुश हैं या सुखी हैं। जो कितना गलत ख्याल है हमारे दिलों में। कंप्लीटली अलग थॉट्स, कंप्लीटली अलग बिहेवियर, कंप्लीटली अलग हॉबीज, कंप्लीटली अलग फूड टेस्ट के साथ क्या दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? क्या आप अपने दोस्त जो नॉनवेज खाते हैं उससे एक वेजिटेरियन दोस्त प्यार नहीं करता? क्या ऐसे दोस्त जो शराब पीते हैं और आप नहीं पीते, तो क्या आप उससे प्यार नहीं करते? क्या आप उसके साथ कंपनी शेयर नहीं कर सकते? एक दोस्त जो क्लासिकल म्यूजिक एंजॉय करता है, दूसरा दोस्त जो बैंड में कहीं गिटार बजाता है या ड्रम्स बजाता है, क्या ऐसे दो लोग दोस्त नहीं है? पर हमें लगता है कि स्पेशली जब स्पाउसेस की बात हो या जब वाइफ एंड हस्बैंड की बात हो, तो दो लोग एक जैसे होने चाहिए। अलग कैसे हो सकते हैं? अलग कैसे सोच सकते हो? अलग कैसे कह सकते हो? हमारे यहाँ ओपिनियन वॉइस करने की आजादी नहीं है किसी को। हम बहुत ज्यादा दम्भ, हिपोक्रेसी की दुनिया में जिंदा है। जो लोग शराब पीते हैं वो अपने घरों में कहीं छुप कर नहीं बताते, जो झगड़ा करते हैं वो भी खुलकर झगड़ा नहीं करते। मुझे हमेशा से ये लगा है कि माँ बाप बनने के बाद अगर दो लोगों को झगड़ा करना है तो डाइनिंग टेबल पर सबके बीच में पूरे दिल से झगड़ लेना चाहिए, और उसके बाद में बच्चे को बताना चाहिए कि देखो ऐसा होता है, चलो साथ में खाना खाते हैं। Let them learn that your parents can have different viewpoints, but they don't hate each other. Your parents are two individuals, two individual people thinking an independent things, having an independent thought process, independent mental makeup, and they respect each other for their individualities. हम हमारे बच्चे को ये नहीं सिखाते। हम ये सिखाते हैं कि हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं,
हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खुश माँ बाप की व्याख्या क्या करते हैं हम, या एक अच्छे फैमिली की डेफिनेशन क्या बनाते हैं? क्या सोचते हैं हम कि एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा खुशहाल परिवार क्या है? क्या अच्छा खुशहाल परिवार ये है जिसमें सबके दिलों में अंदर अंदर गुबार हो और सब लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, उनकी पीठ पीछे बात करते हैं। और एक कल ही एशिया ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी कि इंसान कुकर नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो कविता इसलिए कि हम सब अपने आप को धीरे धीरे कुकर बनाने लगे। जब बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिलीज हो जाता है, और वो कहां रिलीज होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता उसके बाद, क्योंकि हम इतना प्रेशर बिल्ड करते हैं, इतना प्रेशर बिल्ड करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो प्रेशर कहां रिलीज होता है ये हमारे कंट्रोल से निकल जाता है। या तो चूज करें कि हम अपने दोस्त के पास, काउंसलर के पास, अपने बच्चे के टीचर के पास, आप सिलेक्ट कीजिए किसी गुरु के पास, कहीं ऐसी जगह पर जहां आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि यहां से बात बाहर नहीं जाएगी, वही बात करें। यह भी एक तरीका है अपना प्रेशर रिलीज करने का। या फिर यहीं इसी वक्त जहां आपको लगे कि बात गलत है, आप अग्री नहीं कर रहे, बड़े प्यार से, बड़े बड़े सम्मान से विरोध करें। आप कहें कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उस पर खुलकर बात करें। जो माता पिता एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकते या विरोध नहीं करते हैं, वो अपने अंदर कहीं किसी जगह एक ऐसा रिबेल पाल रहे हैं जो किसी एक दिन कुकर बनकर फटेगा। 40 साल 50 साल तक आप कुछ नहीं कहते, आप हर बात में हाँ कहते हैं, आप हर बात में अग्री करने की बड़ी हिपोक्रेट कोशिश करते हैं। आप ये करते हैं कि हम खुश रहें, बच्चे को दिखाएं कि हम खुश हैं। और जब बच्चा टीन एज में आ जाता है, जब आप 40-50 साल के हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि मैंने बहुत सहा है, अब मैं नहीं सहूंगा, अब मैं नहीं सहूंगा। वो कुकर है, वो इंसान नहीं है। मुझे हमेशा से लगा है कि जो आप सोचते हैं वो कहने का करेज रखें, लेकिन कहने का तरीका चूज करें, कहने का वक्त चूज करें। मेरे घर में मैंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा 18 साल का है, टिपिकल टीनेज में है, बाल बढ़ाता है और उसके दोस्त हैं जिनको देख के मुझे कभी कभी लगता है कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं। कभी भी आता है, कभी भी जाता है। उसने एक बैंड बना रखा है जिसमें वो गिटार बजाता है, और जिस तरह का संगीत सुनता है, मुझे लगता है मैं ये संगीत से अपने आप को कभी रिलेट ही नहीं कर पाती। लेकिन उन सब के बावजूद हमारे घर में हमने एक सिस्टम बनाया है कि हम किसी भी हाल में ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, अगर मैं शहर में हूं तो। और ब्रेकफास्ट के वक्त वी हैव मेड इट अ पॉइंट दैट आई टेल हिम माय डे, आई आस्क हिज डे, आई आल्सो टेल हिम दैट व्हाट टाइम आर वी गोइंग टू मीट इन अ डे, and I also tell him that you were very late yesterday, or this is what is to be done for the day, or these are the works I expect to finish in a day. Or if there is a misbehavior, if I felt bad, if I am hurt, if there is something wrong, I choose to message in the morning to the people I love. I tell my child that yesterday you were very bad on this occasion, or what you have done is not right, and the matter ends there. Then next time when there is another misbehavior, I don't bring in that misbehavior again and say that, see, you had done this last time also. Once the account is settled, it has to be closed and sealed. It's with everyone, not just the child. What we do as parents, जब झगड़ा करते हैं तो 5 साल पहले जब गोवा गए थे तब जो हुआ था उसको आज डिस्कस करना पड़ता है। बस ये खुलकर, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम सब वही करते हैं। हम जब भी झगड़ा करते हैं, एक्चुअली आज का मुद्दा क्या है उसको तो भूल ही जाते हैं। हमारे मुद्दे इतने पुराने गड़े मुड़दे हमने कबाड़ से निकाले, और उस पर डिस्कस करते करते हम जब आज तक पहुंच गए तो हमें रियलाइज होता है कि वक्त, टाइम इज अप, अब जाना है। तो आज का मुद्दा तो बाकी रह गया, उसको फिर नेक्स्ट टाइम। सो इमोशनल कैरी फॉरवर्ड फॉर पेरेंट्स is never recommended. आपका बच्चा ये सीखे कि आप बहुत खुले दिल के इंसान हैं, ये बहुत जरूरी है। आपका बच्चा ये सीखे कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं,
ये बहुत जरूरी है। सारी मम्मी, मोस्टली सारी मम्मी, आई विल से, सारी नहीं तो भी एक दो को माइनस कर सकते हैं, मैंने अभी तक नहीं देखी है, फिर भी जब बच्चा छोटा होता है, अबाउट 4-5, 3-4-5, ऑल वी टीच अवर चाइल्ड इज जल्दी कर। सुबह उसकी आंख खुलते ही पहला सेंटेंस हमारा बच्चा क्या सुनता है? जल्दी कर, बस आ जाएगी, जल्दी कर, जाना है, जल्दी करो, बैग पैक करो, जल्दी करो, दूध पियो, जल्दी करो, नहा लो, जल्दी करो, खाना खाओ, जल्दी करो। और उसके बाद जब हमारा बच्चा 14-15 साल का हो जाता है और खड़ा खड़ा खाता है तो हम कहते हैं बैठ के खाओ यार, ऐसे कैसे खाते हो? हमने क्या सिखाया? जल्दी कर। छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, उसके साथ हम कैसे डील, बहुत इंटरेस्टिंग है ये मेरा सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और मुझे रियलाइज हुआ है कि कितना इंटरेस्टिंग है। 2-3 साल के बच्चे को जब हम कहते हैं कि खाना खा लो या ये कर लो या वो कर लो या होमवर्क कर लो, तो हम उसे सिखाते हैं चलो चलो आप फर्स्ट हो जाओ। हमने उसको, जिसको अभी तो कंपटीशन नाम के शब्द से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको हमने धकेल दिया उस दुनिया में जहां सिर्फ कंपटीशन है, रूथलेस, कट थ्रोट। फर्स्ट हो जाओ, वो अकेला ही है, वो फर्स्ट ही होने वाला है। वो जितना आराम से खाए, वो पूरा डोरेमोन देख के या पूरा ये देख के भी अगर उसका खाना खत्म होता है, शिनचैन देख के, तो भी वो फर्स्ट ही है। आप उसके साथ खेलते हैं, जानबूझकर हार जाते हैं, उसे रियलाइज कराते हैं कि अरे वाह तुम्हें ही पता है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम हमारे बच्चे को यह सिखाते हैं कि सिर्फ जीतना सत्य है। हम उसे कभी यह नहीं सिखाते कि कभी हार भी जाओ तो बड़े खुले दिल से हारो यार, ऐसा होता है। हम कभी उसे सेकंड आना नहीं सिखाते। हम कभी उसे यह नहीं सिखाते कि सेकंड आने वाले ने भी बहुत मेहनत की है। हम कभी उसे यह नहीं सिखाते कि आप चाहे लास्ट आए, आपने कितनी ईमानदारी से इस पूरी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कप मिलता है या नहीं। और फिर जब वो स्कूल में आता है, जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो एक एज पे आता है, तो हम उसे स्कूल में ये सिखाते हैं एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, बट टिल डेट व्हाट ही हैज लर्न्ड और शी हैज लर्न्ड इज ओनली दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट हु विंस। अब वो अंडू करना है जो वो ऑलरेडी सीख के आया है। हम कैसे अंडू करेंगे उस बात को जो हमने ही सिखाई है? हमारे बच्चे के पास 2 सिग्नल है, एक माँ जो कल कहती थी, एक माँ जो आज कह रही है। एक पिता जो कल कुछ कह रहे थे, एक पिता जो आज कुछ कह रहे। एक पिता जो 2-3-4 साल के बच्चे के सामने फोन उठाकर कहते हैं कि मैं तो हैदराबाद में हूं, मैं तो सोमवार को आऊंगा। वही पिता अपने 9-10 साल के बच्चे को कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा। The child is like a CCTV camera. It's recording every little move, every little sentence, every little behavior, every little reaction that you are giving. एक माँ है जो अपने बच्चे से कहती है कि टीवी देखते हुए नहीं खाना चाहिए, चलो टीवी बंद करो, पूरा दिन टीवी देखते हो। फिर माँ की दोस्त आती है, माँ को बात करनी है, और माँ कहती है जाओ बेटा कार्टून देखो। हम क्या दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सिग्नल एक नहीं है। हम कभी ये कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, हम कभी कहते हैं कि वैसा करना चाहिए। बच्चे को पता ही नहीं, उसे समझ ही नहीं है कि हम उसे क्यों ये सब कह रहे हैं, और जो कहते हैं वो करते तो है नहीं। तो उसके लिए एक और तीसरा सिग्नल अब मिक्स हो गया है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है पूरी बात के साथ। जब दादी माँ घर में आती है तो माँ का बिहेवियर इतना खूबसूरत है। जब कोई रिलेटिव घर में आता है तो माँ का बिहेवियर इतना डिफरेंट है। और उसी रिलेटिव के जाने के बाद माँ किसी और से या पिता से या किसी और से उसी रिलेटिव के बारे में जो कहती है, वो बच्चा वहां खेल रहा है, वो सुन रहा है। उसकी समझ में नहीं आता है शायद आधी चीजें, पर उसको इतना जरूर समझ में आता है कि वो माँ और ये माँ अलग है। हम मल्टीपल पर्सनालिटी उसको प्रोजेक्ट करते हैं।
और उस मल्टीपल पर्सनालिटी के साथ हम हमारे बच्चे के मन में भी ये कहीं ना कहीं डाल देते हैं कि जो सोचते हो वो कहो मत, जो कहते हो वो सोचो, ऐसा जरूरी नहीं है। और इन सारी चीजों के बीच में अगर कहीं वो बच्चा आपसे कोई सवाल पूछ ले जो सच्चा है, जिसका जवाब देना बहुत मुनासिब है, बहुत ऑनेस्टी चाहिए उस जवाब के लिए, तो हम हमारे बच्चे को कहते तुम बड़े हो जाओ, बाद में बताएंगे, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो सवाल पूछ रहा है, इस बात का ही मतलब ये है कि उसकी समझ में आ रहा है। उसने ये सवाल पूछा है तो वो कितना चर्न होके, कितना फिल्टर होके, कितना सोच कर आप तक पहुंचा है। ये सवाल पूछने से पहले उसने अपने साथ कितनी बात की। और हम जब बच्चे को छोटा मानते हैं, या हम जब ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता है, तब मेक श्योर कि आपका बच्चा एक्चुअली आप सोचते हैं उससे 3 साल बड़ा है। अचानक से पता चलेगा कि वो उसकी समझ में ये सब कुछ आता है जो हमने उसे नहीं बताया, या हमने कभी उससे सिखाने की कोशिश ही नहीं की। हम टेबल मैनर्स सिखाते हैं, चप चप करके नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, खाते खाते नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम कभी हमारे बच्चे को ये नहीं सिखाते कि बिल्कुल सच बोलना चाहिए बेटा, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, और सच इसलिए बोलो कि तुम्हें अच्छा लगेगा, सच इसलिए मत बोलो कि और लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। हम उसे एक अप्रूवल की सोसाइटी में भेज रहे हैं कंपटीशन के बाद। ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई अप्रूव करे तो आप सही है, आपकी सफलता का सारा आधार दूसरे लोगों पर है, आपके सुख का सारा आधार दूसरों के सर्टिफिकेट पर है। आप मर्सिडीज खरीदते हैं तो उसमें बैठकर आनंद लेना ये अलग बात है, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पड़ोसी की आंख में वो ईर्ष्या दिखनी चाहिए जो आपने आज तक नहीं देखी। बहुत अच्छा शेर है जावेद साहब का, मेरा और तुम्हारा बस एक ही गम है, मेरा और तुम्हारा बस एक ही गम है, हर घर में एक कमरा कम है। हम सबको लगता है कि अभी और कुछ करना है, और कुछ करना है, और कुछ करना है। अभी तो बहुत एक नया ट्रेंड चला है करियर मदर्स का। आई एम अ करियर मदर माई सेल्फ, आई एम अ वर्किंग मदर माई सेल्फ। आप जब मां बनती हैं तो बच्चे के साथ साथ एक मां का जन्म होता है, और हर नए बच्चे के साथ एक नई मां पैदा होती है। वो मां कभी पहले इस दुनिया में आई नहीं है। दूसरे लोगों ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बड़ा किया या बुरी तरह बड़ा किया, या जो संभाला नहीं संभाला, सहेजा नहीं सहेजा, सभ्यता सिखाई नहीं सिखाई, लेकिन आपके पास एक फ्रेश बच्चा है और एक फ्रेश थॉट ऑफ सेट ऑफ थॉट्स है जो एक मां के जरिए आपको, एक मां होते हुए आपको करना है। हर बच्चे के साथ एक नया पिता पैदा होता है जिसके पास एक कंप्लीट नया एक्सपीरियंस है पिता होने का। दूसरों के बच्चे को खिलाना या अपने बच्चे को बड़ा करना, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि पड़ोसी के घर में जाके इडली सांभर खाना और अपने घर में बनाना। आपकी इडली पत्थर जैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो। दूसरे के घर में खाना तो कितना आसान, आप बड़े बड़े तारीफ करके खा के लौट के आ जाएंगे। उसका बच्चा थोड़ी देर आपके साथ खेलेगा, आप उसको अच्छी अच्छी चीजें, देखो बेटा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, फिर बात खत्म। आपका बच्चा मुड़कर आपके साथ बात करेगा, वो या तो आपकी बात सुनेगा या तो नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा तो आपको क्या करना है? हर बच्चा अलग। मुझे कोई भी आज तक 2 बच्चे एक जैसे नहीं लगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अलग माता पिता हैं। हम क्यों दूसरे लोगों के से अपने बच्चों की तुलना करते हैं? बच्चा रिजल्ट लेकर घर आता है तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन है, ये है हाईएस्ट कितने हैं, किसके हैं, उसका रिजल्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 8 साल की एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, आप सबने जान पढ़ा होगा। क्या प्रेशर दिया होगा उस बच्ची को, क्या जितने 12th के रिजल्ट क्लोज आते जाते हैं या 10th के रिजल्ट क्लोज आते जाते हैं, आप जाइए किसी साइकेट्रिस्ट के पास और नंबर्स पूछिए, किसी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास, और देखिए कितने माता पिता अपने बच्चों को लेकर आते हैं। बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, टीवी नहीं देखते, खेलने नहीं जाते, खाना कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। हम क्या दे रहे हैं? स्ट्रेस। इस उम्र में, जिस उम्र में स्ट्रेस शब्द से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, फेल हो जाएगा।
उससे ज्यादा क्या होगा? एक साल अगर उसकी जिंदगी का गवा कर वो जिंदगी के बारे में कुछ सीख सकता है तो मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। इतना तो करना ही चाहिए। मेरा एक दोस्त है, फोटोग्राफर है, उसकी बेटी पढ़ती नहीं थी, तो उसकी वाइफ ने मुझे बहुत कंप्लेन किया कि देखो मनमिता ऐसे कर रही है, मनमिता वैसे कर रही है। तो मेरा दोस्त कहता है कि मैंने आज तक सुना है कि 6th में रखेंगे, 5th में भेजने का रूल नहीं है। और मुझे लगता है ये बहुत बेहतर तरीका है जिंदगी को देखने का, कि जहां है वहां रुक जाएगी एक साल के लिए, उससे ज्यादा क्या होगा? देयर इज नो रिवाइंड इन लाइफ। उसको 5वें में तो भेजेंगे नहीं, 6th में रुक जाएगी तो रुकने दो, क्या हो जाएगा? 365 दिन जिंदगी के देकर अगर आप कोई बहुत अच्छा सबक जिंदगी के बारे में उसे सिखा सकते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत वर्थ है। हमें कल हमारा बच्चा करियर बनाए, सबसे आगे निकल जाए, यहां पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये तो आपके सपने हैं। आप अनजाने में अपने सपने अपने बच्चे के दिमाग में, दिल में, जहन में, बुद्धि में और उसकी जिंदगी में डाल रहे हैं। आपने कभी ये सोचा ही नहीं या पूछा ही नहीं कि उसको क्या करना है। आप डॉक्टर हैं तो क्लिनिक है तो आपका बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये कौन संभालेगा? बेच दीजिए, ऐश कीजिए आप भी और उसे भी करने दीजिए। पूरी जिंदगी उसको यही करना है, 9 से 9। किसी भी जगह जाएगा वो 9 से 9 की जिंदगी जीने वाला है। वो कॉर्पोरेट में जाएगा तो भी, वो डायमंड में जाएगा तो भी, वो टेक्सटाइल में जाएगा तो भी, वो पेंटर बनेगा तो भी, वो क्रिएटिव है तो भी, वो क्रिएटिव नहीं है तो भी, वो बिजनेसमैन है तो भी, वो निष्फल है तो भी, वो सफल है तो भी। तो अब 5 साल के, 6 साल के बच्चे को आप एक्टिविटी में भेजते हैं, आप यहां भेजते हैं, आप वहां भेजते हैं, वो टेनिस खेल रहा है, वो टाइक्वांडो कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी जिंदगी घड़ी की नोक पर चलती है। आपको पता है घड़ी में जो 2 सुई होती है उसको क्या कहते हैं? कांटे। क्यों चुभा रहे उसकी जिंदगी में? क्यों उसको ये लग रहा है कि मेरी जिंदगी मेरी अपनी नहीं है, मुझे किसी ने दी है और मुझे इसका ऋण लौटाना है पूरी जिंदगी। और फिर किसी दिन आपका बच्चा मुड़कर आपसे कहता है कि बस हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। खुले आसमान के नीचे एक बच्चा जिंदा रहता है, पनपता है, बड़ा होता है, एक अच्छा इंसान बनता है। बहुत हो गया, एक अच्छा इंसान अच्छी करियर बना ही लेगा। अब आप एज पेरेंट मुझे पूछेंगे कि इस हरीफाई के समय में, इस दुनिया में जो चल रहा है उसके बीच में, अगर वो नहीं कर पाया तो, अगर वो फेल हो गया तो, अगर हमने उसको इतना डिसिप्लिन में नहीं रखा और बिगड़ गया तो। ये व्हाट्सएप एक बहुत खूबसूरत चीज है। जितने टीनेज पेरेंट, टीनेज बच्चों के माँ बाप है, उनको तो बराबर पता होगा। आप फोन लगाएं, फोन लगाएं, फोन लगाएं, आपका बच्चा जवाब नहीं देगा। आप एक टेक्स्ट भेजिए, वो तुरंत जवाब देगा, उसका पूरा ध्यान टेक्स्ट पर है। ये फेसबुक स्टेटस अपडेट, अभी एक लड़की ने बहुत अच्छा स्टेटस अपडेट किया था, शी वॉज नॉट टीनेज, लिटिल एल्डर, कि सिंड्रेला की जिंदगी में कोई प्रिंस था ही नहीं, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रिंस, इट वॉज बिकॉज शी वॉन्टेड अ न्यू ड्रेस एंड वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी। ये प्रिंस क्या होता है? प्रिंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मुझे ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि पूरी जनरेशन बदल गई। किसी जमाने में एक लड़की के लिए प्रिंस ही सब कुछ था। किसी जमाने में एक लड़की को लगता था कि एक सपनों का राजकुमार मिल जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मिल जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम। अब की दुनिया में कितना भी अच्छा पति हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी कमाता हो, एक लड़की को लगता है मैं क्या कर रही हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे पैसे नहीं मांगने उनसे। आप सोचिए, आपकी मम्मी ने कभी ऐसा सोचा है कि पापा से पैसे नहीं मांगने? लड़ झगड़ के मांग लेती थी वो। आज के जमाने में अगर पति ये पूछ ले कि मैंने पिछले महीने 5,000 रुपए दिए थे या पिछले हफ्ते दिए थे, उसका तुमने क्या किया, तो भी बुरा लग जाता है पत्नी को।
स्वमान की व्याख्याएं बदल गई, सम्मान की व्याख्याएं बदल गई, जिंदगी की व्याख्याएं बदल गई है, सोच बदल गई। और इस बदलते हुए जमाने में अगर आप एज पेरेंट एवरी डे इवॉल्व नहीं करते हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे, आपका बच्चा आगे निकल जाएगा। व्हाट्सएप अगर कर रहा है, फेसबुक अगर कर रहा है, बच्चा पूरा दिन फेसबुक पे लगा रहता है, तो फ्रेंड बनिए उसके फेसबुक पर, घुसिए उसके फेसबुक में, पता कीजिए उसके किस तरह के दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढिए, उसको उसी की तरह से पहुंचना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि उसकी एब्सेंस में आप उसका फोन उठाकर देख लेंगे और आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको पता चल जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि आपके सारे बच्चे अब फोन लॉक करते हैं। बड़ी निराशा होगी आपको वो फोन हाथ में लेकर, क्योंकि आप वो लॉक खोल नहीं पाएंगे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर आप पूछेंगे लॉक क्यों करते हो, तो आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि तुमने देखने की कोशिश क्यों की। एक नौकर था, उसके मालिक ने उसको सारी चाबियां दे रखी थी घर की। फिर एक दिन वो मालिक बाहर गांव गए, वो लौट के आए तो नौकर ने फेंकी चाबी और उससे कहा कि आप मुझसे कोई मुझ पर विश्वास नहीं है आपको, आप सब ऐसा दिखाते हैं कि आपने मुझे सारी चाबियां दे रखी है। तो मालिक ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तो नौकर ने कहा एक भी चाबी लगती नहीं है। तो मालिक ने कहा कि मैं वही देखना चाहता था कि तुम लगा के देखते हो कि नहीं देखते हो। यही मजे हैं जिंदगी के। हम जब अपने बच्चों से डील करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे गिनी पिग हैं। ये डॉक्टर्स और वकील पर मुझे बड़ी हंसी आती है कभी कभी। वो सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं। आप पूछिए कि डॉक्टर क्या करते हैं, तो बोले मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो मुझे बहुत डर लगता है कि ये परफेक्ट नहीं हुआ अभी, ये हम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भी माँ बाप बनने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, पहले बच्चे पर, दूसरे बच्चे पर, तीसरे बच्चे पर। बहुत डर लगता है। और सच बात यह है कि माँ बाप या माता पिता या पेरेंट्स का कोई परफेक्शन है ही नहीं। आप किसी भी माता पिता को दिखा के ये नहीं कह सकते कि ये आदर्श है, ऐसे माता पिता बनो। गांधी जी के बारे में अगर हमें लगता है कि गांधी जी आदर्श है, तो हरिलाल को उसके सामने भी कंप्लेन है। तो इसका मतलब यह है कि कोई माता पिता ऐसे नहीं। जो राष्ट्रपिता है पूरे हिंदुस्तान को, जिसने पूरे हिंदुस्तान ने जिसको पिता कहा, उसका खुद का बेटा कहता है कि बेकार बाप है। तो कोई माता पिता परफेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी रिलेशनशिप परफेक्ट हो, आपका रिश्ता परफेक्ट हो, आप एज पर्सन्स परफेक्ट है या नहीं है, उससे आपके बच्चे के अपब्रिंगिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपनी फ्लॉज, अपनी गलतियां, अपनी मर्यादाएं उसके सामने खुले दिल से स्वीकार करो। आप ये कहें किसी दिन, अगर आपका 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा सिगरेट पीकर आता है, आप सूंघ सकते हैं और आप उससे पूछेंगे सिगरेट पीने आ रहे हो, एंड ही सेज नो। आपको बड़ा गुस्सा आता है, झूठू बोले छे। यहीं से वो काली पांच से सुर शुरू होता है, फिर ऊपर चला जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो आप उसे क्यों रियलाइज कराते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो? क्या साबित करना चाहते हैं कि वो झूठा है? वो तो आप जानते हैं, प्रूव करेंगे बस उसके सामने, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। वो एक बार एडमिट कर लेगा, आप जीत जाएंगे, लेकिन एज पेरेंट आप हार जाएंगे। बेहतर ये है कि आप ये कहें कि ऊपर पहली बार सिगरेट पी दे ली ने, मैं कह रहा हूं ऊपर झूठ झूठ बोले लो, एंड देखिए क्या होता है आपके घर में। शेयर कीजिए, स्वीकार कीजिए बात को, हंसिए बात पर, उस तक पहुंचने के दरवाजे खोलिए, बंद मत कीजिए प्लीज। एंड एज पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप, मुझे नहीं लगता जो यहां दिखाया कि झगड़ा करते हैं माँ बाप और उसकी बच्चों पर असर होती है, मुझे ये लगता है कि जो माँ बाप कड़वाहट पालते हैं उसकी बच्चों पर बहुत असर होती है। आपका बच्चा ये देखना चाहता है कि हमारा एक परिवार है, हम सब साथ हैं, हम सब साथ ही रहेंगे, क्योंकि उसके लिए अपने परिवार के बाहर की दुनिया अभी खुली नहीं।
उसे पता है कि वो स्कूल जाता है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, ये है वो है, लेकिन सबके बाद लौटकर उसे घर आना है, और घर ही उसकी वो जगह है जहां उसको सिक्योरिटी मिलती है, जहां उसको सुख मिलता है, जहां उसे स्नेह मिलता है, जहां उसके पास वो सब है जिसकी उसे जरूरत है, जिसकी उसे अपेक्षा है। और अगर घर में कहीं दरार है, आप सोचिए कि आपने बहुत बड़ा बंगला बनाया, बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा, और उसमें कहीं पानी का भेज आ रहा है या कहीं दरार पड़ी है, तो क्या आप बिल्डर को पैसा देके वो घर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। और अगर आप ऐसा घर खरीदने को तैयार नहीं है जो टूटा है, जिसमें कुछ गलतियां हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल फ्लॉज है, तो आपका बच्चा वो क्यों खरीदे जिसमें वो टेक्निकल फ्लॉज हैं जो उसे नहीं चाहिए? उसे एक ऐसा घर, ऐसा परिवार दीजिए जिसमें उसे लगे कि वो कभी भी लौट कर आ सकता है, किसी भी वक्त वो घर आ सकता है। कितनी मम्मी को मैं देखती हूं, वो अपनी बेटी को कहते हैं तुम्हारे घर जाके करना। हमने भी कहा होगा कभी किसी दिन, ये सब यहां नहीं चाहिए, तुम अपने घर जाओ फिर करना। क्यों? ये उसका घर नहीं है। आप क्यों उसे ऐसा रियलाइज कराते हैं कि ये उसका घर नहीं है? और उसके बाद जब उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, जब उसकी शादी हो जाती है और आपका बच्चा जब आपको आकर कंप्लेन करता है, तो आप ये कहते हैं कि नहीं बेटा, ससुराल में ही रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके बदले जिंदगी जिए, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बच्चे को ये लगना चाहिए कि उसका परमानेंट एड्रेस एक ही है, वो कभी नहीं बदलेगा। उसके पेरेंट्स ऐसे हैं जहां वो कभी भी लौट कर आ सकता है, कुछ भी गलती करके आ सकता है, कुछ भी आकर कह सकता है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। और ऐसे माँ बाप हैं जो उसे उठा लेंगे, जो उसे सहेजेंगे, जो उसे संभालेंगे, चाहे एक थप्पड़ मार दे लेकिन उसकी गलती का एहसास कराने के बाद वो माता पिता उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसे ऐसा आसरा देंगे कि उसको कभी कहीं किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। कितने पेरेंट्स आजकल कंप्लेन करते हैं कि उसके लिए उसके फ्रेंड्स ही सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बच्चा बाहर उस दोस्त को ढूंढता है जो उसको उसके माँ बाप में नहीं मिलते। माँ बाप बहुत बिजी हैं, या बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या बहुत कंट्रोल में रखते हैं, या बहुत केयर करते हैं, या बहुत उसके बारे में सोचते हैं, या बहुत चिंता करते हैं, पर वो दोस्त नहीं है। आप सोचिए, आप आपके बच्चे को कभी भी उठा कर रख सकते हैं? किसी ना किसी दिन तो वो चला, और जिस दिन चला कभी गिरा ही नहीं। एक पेरेंट हाथ उठा के कह दे कि मेरा बच्चा कभी गिरा नहीं जिंदगी में, उसको कभी लगा ही नहीं, उसको कभी खून ही नहीं निकला है। ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो ऐसा कह दे कि मेरे बच्चे को कभी कोई तकलीफ हुई ही नहीं। वो तकलीफ उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो तकलीफ उसे बार बार याद कराना, उससे बड़ी गलती इस दुनिया में कोई नहीं है। मत कहे उससे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम गिरोगे। आपने कहा था, उसने नहीं सुना, वो गिर गया, उसे लगा है। अभी अभी मत कहिए, उसकी पीड़ा पर नमक मत डालिए, उसे खड़ा कीजिए, उसे एहसास दिलाइए कि आप हमेशा से साथ हैं, और उसके बाद उससे कहिए कि बेटा थोड़ा ख्याल रखा करो, जब तुम गिरते हो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। There is a way of saying things. हम उसे 50,000 का मोबाइल खरीद के देते हैं, फिर उससे कहते हैं कि बेटा ये 50,000 का है, गिरा मत देना, ये मत करना, वो मत करना। हम उसे कीमत बताते हैं, फोन का मूल्य नहीं बताते। मूल्य ये है कि बेटा अगर ये फोन तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम कहीं ऐसी जगह फंसोगे जहां से तुम फोन नहीं कर पाओगे, तो हम तुम्हारी बड़ी चिंता करेंगे। इसकी कीमत बहुत है, मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए खरीदा है, लेकिन वो ठीक है, मुझे लगता है कि इसका मूल्य ज्यादा है। ये हमारे कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है जब तुम बाहर जाते हो। देखिए आप, कितना फर्क पड़ेगा आपके बच्चे के साथ आपकी बातचीत में। हम उसके लिए 6-6 टी शर्ट लेके आते हैं एक साथ, फिर उसे देते हैं, फिर उसे बताते हैं हमारे पास तो 2 ही शर्ट थे, हम तो 2 कर पहनते थे। क्यों बताते हैं? उसको इंटरेस्ट नहीं है। आप लाएं, वो उसको खुशी से एंजॉय करने दीजिए। आप अपने अभाव उसे क्यों बताते हैं? 10 बजे जब बच्चा उठता है तो आपको गुस्सा ये नहीं आता कि वो 10 बजे उठता है, आपको गुस्सा ये आता है कि आपको 8:30 बजे ऑफिस जाना पड़ता है।
सोचिए मेरी बात पर। जो आपने एंजॉय नहीं किया वो आप उसे दे रहे हैं जरूर, लेकिन देने के बाद आपके बचपन के अभाव आपको बड़ी तकलीफ देते हैं। वो अभाव उस पर मत थोपिए। आपके बचपन में जो तकलीफ हुई उसका कारण आपका बच्चा नहीं है, आप भूल गए इस बात को। आपका बच्चा जितना खुश है, जितना सुखी है, जो मजे कर रहा है, जो ऐश कर रहा है, वो सारा आपने ही दिया है, वेरी गुड, लेकिन आपने अपनी मर्जी से दिया है। अब उस बात को उसे रेलिश करने दीजिए, उस बात को उसे एंजॉय करने दीजिए। हर उस छोटी चीज को जो आपने उसके लिए प्रोवाइड की है, जो आप उसके लिए प्रोटेक्ट करते हैं, जो आप उसके लिए प्रोक्योर करते हैं, उस तक पहुंचने दीजिए और उस चीज की उसे खुशी लेने दीजिए। क्यों बताते हैं कि आपके पास क्या नहीं था? वो बताने का भी एक वक्त होता है। हर बार हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। हम सब कहीं, जो लोग अभी 40 प्लस में हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाजू वाले के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने जाते थे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, they have started from a scratch. They have reached a place where they are successful, they are making money, they have good houses, good cars, good this. आपका बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, इसका मतलब ही ये है कि आप उस क्रीमी लेयर से हैं, आप उस क्लास से हैं जहां जिसके पास सब कुछ है। आपका बच्चा ऐसी स्कूल में पढ़ता है जहां आप ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा उस क्लास से बिलोंग करता है जिस क्लास में अभाव कम है। सही है। फिर आप कहेंगे उसे उस चीज की कीमत नहीं होती, उसे मूल्य नहीं होता। वेरी गुड, देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग दैट ऑल्सो। आप अपने ही बच्चे से कहिए कि जो खिलौनों से अब नहीं खेलते या जो कपड़े अब नहीं पहनते निकाल के दो। आप मत लगाइए उसका कपबड़। ये अब पहनते हो, नहीं पहनते हो, ये तो मैंने पहने हुए देखा ही नहीं है। आपका बच्चा बोलेगा मैं पहनता हूं। कब पहनते हो? मैंने तो कभी नहीं देखा। आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली उसका टी शर्ट निकाल रहे थे। आप निकल गए आर्ग्यूमेंट की तरफ। उसको ही कहिए कि आप अपने कपड़े निकालिए जो आप नहीं पहनते, खिलौने निकालिए जो आप नहीं यूज करते, चीजें निकालिए जो आपके काम की नहीं है, आप उसे लेकर जाइए और ऐसे बच्चों को दिलवाइए जो बच्चे एक्चुअली अभाव से गुजर रहे हैं। उसे समझाइए कि ये बच्चे अभाव में हैं। लेट योर चाइल्ड शेयर समथिंग विच इज एक्स्ट्रा। उसे एक्स्ट्रा की समझ दीजिए। उसे सब चाहिए, नया पुराना जितना है कबड़ में भर के रखना। कितनी लेडीज को मैंने देखा है, दिवाली आती है, पूरा लॉफ्ट नीचे उतरता है, सब खाली होता है, साफ होता है, फिर सब ऊपर चढ़ जाता है। आप उसमें से कुछ भी फेंकने को तैयार नहीं या किसी और को देने को तैयार नहीं है जिसके पास वो नहीं है। अभाव का एहसास आप अपनी तकलीफ से क्यों कराते हैं? आप अभाव का एहसास ऐसे लोगों की तकलीफ से कराइए जो एक्चुअली तकलीफ में है। व्हाट इज एन एक्स्ट्रा थिंग? गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा था कि ट्रस्टीशिप इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। हमारे पास जो है, हमें जितना चाहिए उतना हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर जब आता है, उससे बढ़कर जब हम पाते हैं, उससे बढ़कर जब हम रिसीव करते हैं, तो हमने किसी ना किसी के हिस्से से उसको काटा है। उसको शेयर कीजिए। इतनी इनसिक्योरिटी से आप खुद गुजर रहे हैं कि आप अपने बच्चे में भी वो इनसिक्योरिटी इम्बाइब कर रहे हैं। खो दोगे, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, पैसे कहां रखे, संभाल के रखो। एक बार खो देगा तो सीख जाएगा कि संभाल के रखना चाहिए। उसके हिस्से के एक्सपीरियंस तो करने दीजिए उसे। आप अपने रेडीमेड एक्सपीरियंसेस इंस्टेंट फूड की तरह उसके टेबल पर रख रहे हैं। उसे नहीं चाहिए वो। उसे अपने हिस्से का एक्सपीरियंस चाहिए, उसे अपने हिस्से का ज्ञान चाहिए, उसे अपने हिस्से की समझ चाहिए जो वो खुद इम्बाइब करेगा, जो खुद पाएगा। और वो उसे पाने दीजिए। बस इतना ही कीजिए कि आप उसके पीछे खड़े हैं। वो गिरे तो आप हैं, पर गिरने तो दीजिए। बिना गिरे पता कैसे चलेगा कि क्या होता है? और ये सारी बातों में सबसे बुरी बात यह है, बहुत अच्छा कहा मैडम ने, योर चाइल्ड, माई चाइल्ड एंड आवर चाइल्ड। जब बच्चा कुछ गलती करता है तो वो मां का बच्चा है। जब वो कुछ अच्छा करके आता है तो वो मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन मां रहती है। मैं बार बार कहती हूं कि डैडी इज फ्रॉम डिज्नीलैंड एंड मम्मी इज फ्रॉम डेविल्स लैंड।
डैडी आते हैं शाम को 9, 9:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी वक्त, उनको लगता है कि यही वक्त है मेरे पास देने के लिए, और उस वक्त में वो बच्चे को सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, और उनको लगता है कि बच्चा सिर्फ चीजों से खुश हो सकता है। डैडी कभी मना नहीं करते, ऐसा बच्चे को भी लगना शुरू हो जाता है। तो जब उसे बड़ी चीज चाहिए, जब उसे कोई मेजर परमिशन चाहिए, तो वो माँ को ओवरटेक करता है, सीधा हेड ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट में। और जब माँ मना करती है तो बच्चे को लगता है देखो ये तो हमेशा मना ही करती। क्यों? आप क्यों एक सुर में नहीं गाते? आपका बच्चा है, उसका भविष्य है। अगर माँ ने किसी बात में मना किया है तो आप अकेले में उससे बात करें पहले कि क्यों मना किया। घर में वकील, इससे बुरी मुझे लगता है आप अपने बच्चे को कोई चीज नहीं दे सकते। दिस इज लाइक अ ड्रग, दिस इज लाइक अ सिगरेट टू गिव हिम और हर अ लॉयर इन द हाउस, लॉयर इन द फैमिली। अगर माँ उसे ये कहती है कि आज इतना खाना है, ये सब्जी खानी है या ये करना है, तो प्लीज उस वक्त एज अ पेरेंट मत कहिए कि जाने दो। आप अगर नहीं मानते हैं इस बात को तो भी उस बात के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करें। आज के बाद उसे प्लीज जबरदस्ती सब्जी मत खिलाना। आज तक किसी ने बैंगन नहीं खाया और मर गया हो ऐसा मुझे नहीं पता, ठीक है, मत खिलाओ। आप अगर उसे सब कुछ खिलाना नहीं चाहते मत खिलाओ, इट्स ओके, आई अग्री। मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि दुनिया की 2 सब्जी अगर कोई इंसान नहीं खाता है तो हम उसे क्या डिसिप्लिन कर रहे हैं। ठीक है, मत खाओ 2 सब्जी, वो मैनेज करेगा, 20-25 साल का हो जाएगा तो बिना बैंगन के। मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ और मैं दुनिया भर में घूमती हूँ और मुझे आज तक कहीं मैं भूखी नहीं मरी हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती है। सब जब एडल्ट हो जाते हैं अपना खाना मैनेज करना सीख जाते हैं। हम उसे ये सिखाते हैं कि तुम अपने टी शर्ट खुद चुनो, तुम अपने कपड़े खुद चुनो, अपने टॉयज खुद चुनो, तुम ये करो, तुम इंडिपेंडेंट बनो। हम तो सब उसे करने देते हैं, पर जब करियर चुनने की बात आती है हम उसे इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते। जब जिंदगी चुनने की बात आती है हम उसे इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते। हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत, खाड़े डूचा ने दरवाजा उघाड़ा। छोटी छोटी बातों में हम उसे बहुत इंडिपेंडेंस देते, लेकिन जहां उसे इंडिपेंडेंस देना चाहिए, उसके एक्सप्रेशन में, उसकी जिंदगी में, उसके दोस्तों में, उसके डिसीजंस में, हम नहीं देते। बच्चा कहता है मुझे वायलिन की क्लास में नहीं जाना, मुझे फ्रेंच नहीं सीखना है, तो हम कहते हैं तुम आगे जाओगे, फिर फ्रांस जाओगे। वो जिंदगी में फ्रांस जाएगा कि नहीं आपको पता नहीं, आप क्यों उसे पुश कर रहे हैं? एक फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, नहीं आई तो क्या, जब उसे लगेगा कि एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए वो खुद सीख लेगा। जरूरत सारी इन्वेंशंस की मां है, उसे जिस दिन पता चला कि उसको जरूरत है वो कर लेगा। लेकिन वो फ्रेंच के क्लास में नहीं गया और आपके साथ एक शाम अगर हफ्ते में गुजार सकता है तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी नेमत है, वो बहुत बड़ी गिफ्ट है आपके बच्चे के लिए। कितने माता पिता उसे वो सारा सुख देते हैं जो दूसरे बच्चों के पास नहीं है, लेकिन वो सुख नहीं देते जो उसे चाहिए। मतलब तुम खुश भी हमारी शर्तों से रहो, हम जो देते उसी में खुश हो जाओ। उसे आपका वक्त चाहिए, उसे आपके साथ बहुत कुछ बांटना है, उसे बेवकूफ जैसी बातें करनी है। मेरा बेटा इतना बुरा गिटार बजाता था, सर में दर्द हो जाए इतना बुरा, पर वो जब भी बजाना कि सुनो मैं अच्छा बजाता हूं, और इतना बेसुरा, पर मैं 10-15 मिनट सुनती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए सारी दुनिया उसके लिए तालियां बजाएगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी माँ उससे ये कहेगी कि तुम अच्छा बजाते हो। हम क्यों नहीं दे सकते वो हमारे बच्चे को? और इसमें तो कोई कॉस्ट भी नहीं है, आपको कुछ करना भी नहीं, सिर्फ वक्त देना है, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंट बनना है, थोड़ा सा लिसन करना है, थोड़ा सा, अंग्रेजी में बहुत अच्छे शब्द है, टू हियर एंड टू लिसन टू। To hear is something where you don't pay attention, but when you listen to, you are all there. टीवी हर कमरे में है आज। आप अपने बच्चे को अपने कमरे में टीवी देते हैं इसलिए कि आपको लगता है कि उसके कमरे में टीवी देने से वो रूम परफेक्ट बनेगा।
किड्स रूम अच्छा लगे, लेकिन उसके आगे भी तो एक बात है। उसके आगे ये बात है कि आप उसके साथ बैठकर कभी टॉम एंड जेरी देखिए तो सही, किसी दिन उसके साथ शिनचैन देखिए तो सही, उससे पूछिए तो सही कि वो क्या है, एंजॉय कीजिए उसके साथ। मैं सिंड्रेला नहीं देखूंगा, क्यों? आप जाइए ना अपनी बेटी के साथ 13 साल की, उसे बताइए कि सिंड्रेला कितनी खूबसूरत चीज है, तू मेरी सिंड्रेला है। हम क्यों नहीं करते ये हमारे बच्चों के लिए? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी की, और मुझे लगता है ये सारी छोटी चीजें धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती हैं। आप अपने अभाव उसमें डालते हैं, आप अपनी कंपटीशन उसमें डालते हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज उसमें डालते हैं, और ये तो बहुत ही फलद्रुप जमीन है, वेरी वेरी फर्टाइल लैंड। आपने जो बोया वही उग के आएगा, फटाफट निकलेगा। इतनी फर्टाइल जमीन है ये, इनके दिमाग, इनके मन, इनका प्यार, इनका हृदय। फिर वो उग के आया, आपको वही काटना है जो आपने बोया है। बेहतर ये है कि आप ये बोएं जो आप सच में काटना चाहते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, प्रतिबद्धता, अनुशासन सिखाना चाहते हैं हम, तो जल्दी कर बोलने से नहीं होगा। 3 दिन उठिए 7 बजे, इंतजार कीजिए उसके उठने का, और उसे कहिए कि बेटा मैं तो रोज उठ रहा हूं, तुम नहीं उठ रहे। तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दी उठने से हम साथ में चाय पी सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते, हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं, हम सिर्फ उसे ये रियलाइज करा सकते हैं कि तुम लेट उठते हो। हम ये नहीं कर सकते कि हम जल्दी उठे और उसका इंतजार करें और उसे ये रियलाइज कराएं। गांधी को गांधी उस इंसान ने बनाया जिसने उसकी सारी गलतियां माफ की, और वो उसके पिता थे। उसने भी मांस खाया, उसने भी चेन काट कर बेची, उसने भी वो सब कुछ किया जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। संजय दत्त ने अभी बहुत अच्छा एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जिंदगी भर अपने आप को उस चीज के लिए माफ नहीं कर सकता, और ये सारी गलतियों की मैं जो कुछ भोग रहा हूं वो एक चीज की गलती की सजा है, और वो ये है कि जब मेरी मां मर रही थी मैं बाथरूम में ड्रग ले रहा था। उस बात को वो भूल ही नहीं सकते। हम क्यों ऐसी यादें दे रहे हैं हमारे बच्चे को कि जब भी वो याद करे वो दुखी हो? हम क्यों नहीं ऐसी याद दे रहे हैं हमारे बच्चे को कि हम हो ना हो, हमारा बच्चा जब भी हमें याद करे उसके चेहरे पर स्माइल आए और आंखें नम हो जाए। जब भी हमारे बारे में सोचे उसे लगे कि ऐसे पेरेंट्स किसी के नहीं। हम भी बूढ़े हो जाएंगे एक दिन, ये बात हम भूल जाते हैं। महाभारत का एक बहुत अच्छा प्रसंग है जिसके बारे में हम सब ने सुना होगा, फिर भी मैं आज कहती हूँ कि युधिष्ठिर जब पानी पीने जाते हैं तो यक्ष उनसे सवाल करता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सबको पता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन सब मानते हैं कि मैं जवान रहूंगा, और सबको पता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन सब मानते हैं कि मैं अमर हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम कोई इस दुनिया में परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। कभी गूगल अर्थ में जाइए और देखिए कि कितनी बड़ी कायनात, उसमें कहां इतने सारे ग्रह, इसमें पृथ्वी में छोटा सा कोई देश, उस छोटे से देश में कहीं छोटा सा सूरत या अहमदाबाद, उसमें हमारा छोटा सा घर। आप कितना जूम इन करते जाएंगे तब जाके कहीं आपको अपने अस्तित्व का पता चलेगा, और उस अस्तित्व के लिए हम कितने ज्यादा, कितने खूब सारे लोगों से तकलीफ मोल लेते हैं, कितने लोगों के साथ लड़ते हैं, कितना अहंकार, कितनी समस्याएं खड़ी करते हैं। लेट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड मी। कितनी अच्छी बात। आई थिंक आई रियलिश दिस लाइफ। और हम अच्छी जगह कैसे बनाएंगे इस दुनिया को? एक अच्छा इंसान गिफ्ट करेंगे इस दुनिया को, जो कचरा नहीं फेंकेगा, जो राइट जगह पार्किंग करेगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, जो दूसरों की कदर करेगा, जो अपने अभाव दूसरों के साथ नहीं बांटेगा, बल्कि अपनी पास जो ज्यादा है वो दूसरों को देगा, जो अपने फ्रस्ट्रेशंस दूसरों पर नहीं डालेगा, जो स्वीकार करेगा, जो माफ करेगा। मुनव्वर राणा का एक बहुत अच्छा शेर है, मैंने कुछ ऐसे अपने को आजाद किया, मैंने कुछ ऐसे अपने को आजाद किया, कुछ लोगों से माफी मांगी, कुछ को मैंने माफ किया। मुझे लगता है हम अपने सारे रिश्तों से ज्यादा अहमियत अगर हमारे संतान को देते हैं,
हम अपनी सारी दुनिया अगर हमारे बच्चे में देखते हैं, कितने माँ बाप कहते हैं कि मेरी तो दुनिया ही मेरा बच्चा है। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी दुनिया आपका बच्चा है, तो प्लीज मेक दैट अ बेटर प्लेस टू लिव। गिव योर चाइल्ड अ बेटर persona, give your child a better way to live, give your child a better human being as a gift. आप कितने ही बंगले, कितनी ही जायदाद उसे गिफ्ट में देकर जाएंगे, वो उड़ाते हुए उसे 10 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन आप कुछ न देकर जाएं तो भी अगर वो मेहनती है, वो ईमानदार है, वो सच बोलता है, उसके पास टैलेंट है, तो वो सारे बंगले, सारी जायदाद वो खुद खड़ी कर लेगा। We can give only two things to our children actually, roots and wings. Roots उसे खड़े रहने में मदद करेगा। हम जितना ऊंचा मकान बांधे उसके बेस में उतने ही ज्यादा नीचे जाना पड़ता है। पेड़ जितना ऊपर जाता है उतना नीचे बढ़ता है, तभी वो खड़ा रह सकता है। तो उसके रूट्स मजबूत बनाइए। उसे ये मत कहिए कि बड़ों के पांव छूने, उसे ये कहिए कि आप जिसका रिस्पेक्ट करते हैं उसे नमन करो। चलो पांव छुओ, वो भी मैकेनिकली पांव छूता है, मत करो ये। उसे ये कहो कि 5 इंद्रिय और 5 तत्व मिलकर मैं 2 हाथ जोड़कर मेरे अहंकार के साथ आपको नमन करता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। लॉजिक सिखाइए आपके बच्चे को कि जिसके सामने झुकोगे उसको आप अपने अहंकार के साथ, अपने 5 तत्वों के साथ, अपनी 5 इंद्रियों के साथ हाथ जोड़कर वंदन करते हैं। और हर बार झुकते हो तब तुम्हारा अहंकार झुकता है। झुको, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हो। हम उसे लॉजिक नहीं सिखाते। हमारा बच्चा कहता है शादी में जाएंगे, वो पूछता है क्यों, मैं क्यों? फिर हम कहते हैं मैं जा रहा हूं या हम सब जा रहे हैं तो तुम्हें आना है, हमारा रिलेटिव है, हमारे ये है, तुम्हें सबको जानना चाहिए। फिर आपका बच्चा एक नया ट्रम्प कार्ड निकालता है, मैं बरमूडा पहन के आऊंगा। सबके साथ होता है, मेरे घर में भी होता है। मेरा बच्चा बाल नहीं कटा रहा है, मैं जितनी बार उसके बाल देखती हूँ मुझे एक विचित्र सी इरिटेशन होती है। मैंने सीख लिया है उसके बालों के साथ डील करना। मैंने इतने बड़े लंबे बाल ऐसे मेरे दुनिया के लड़कों को देखती थी, मुझे लगता था नहीं मेरा बच्चा नहीं करेगा, वो भी कर रहा है। वो ऐसे बैंड पहनता है लड़कियों वाला, क्या कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो अपना बचपन एंजॉय कर रहा है, वो अपनी जवानी पूरी एंजॉय कर रहा है। और यही तरीका है इनका जवानी एंजॉय करने का। हमारे वक्त में जो लोग बेल बॉटम्स पहनते थे, वो आज हमारे बच्चे को पहना के देखिए आप। वो उस वक्त की जवानी थी, ये आज की जवानी है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बच्चे को नहीं पता कि 45 साल का या 40 साल का या 35 साल का पेरेंट होना क्या है। लेकिन हमें तो पता है कि 13 साल का होना क्या है, 15 साल का होना क्या है, 17 साल का होना क्या है। हम तो वहीं से गुजर के आए, हमने वो सब किया है। लेकिन अब हम बड़े सयाने हो गए तो हमें लगता है ये सब नहीं करना चाहिए। उसे भी लगेगा, तब उसका बच्चा रेडी होगा ये सब करने के लिए। खुश रहें, यही एक तरीका है अपने बच्चे को खुश रखने का। आपका स्ट्रेस आपके बच्चे पर तक पहुंचता है, आपकी लड़ाई आपके बच्चे तक पहुंचती है, आपकी बेईमानी आपके बच्चे तक पहुंचती है, तो वही करें, वही दें जो सच में देना चाहते हैं, वही बोएं जो काटना चाहते हैं। सिर्फ प्यार दें और प्यार पाएं, सम्मान दें और सम्मान पाएं। हम हमारे बच्चे को उसके फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमें मान देगा। शट अप, आई एम योर फादर। ये क्या तरीका हुआ? थोड़े दिनों के बाद वो आपसे कहेगा शट अप, आई एम योर सन। आपने वही सिखाया, वो यही सीखा। आपने अगर ये कहा होता कि बेटे पापा से ऐसे बात कर दे, if you think it is right, do it, and if you think it is wrong, come back to me after 10 minutes. देखिए क्या होता है। एज पेरेंट अगर कुछ एक चीज हम सबको सीखने की जरूरत है तो वो है संयम। जबान पर, बिहेवियर पर,
अगर आप अपने आप को मेच्योर समझते हैं, अगर आप अपने आप को माँ बाप समझते हैं, अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अब ग्रोन अप है, अब एडल्ट है, तो सबसे पहले ये सीखिए कि आप अपने रिएक्शन कंट्रोल करें। और अगर ये कर पाएंगे तो आपसे बेहतर पेरेंट कोई नहीं है, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। मैंने काफी वक्त लिया मुझे लगता है, पर पेरेंटिंग एक ऐसा विषय है कि उस पर आप जितना बोले कम है। हम एक अच्छी दुनिया बनाने निकले हैं, और अच्छी दुनिया तब बनेगी जब थोड़े अच्छे इंसान देंगे इस दुनिया को, और अच्छे इंसान तब मिलेंगे जब हम अच्छे माता पिता बनके अच्छा अपब्रिंगिंग करेंगे। हम गार्डन में फूलों की कितनी केयर करते हैं, हम गाड़ी के मशीन की कितनी केयर करते हैं, और हम उसी चीज की केयर करने में कहीं गलत है जो सच में ये गाड़ी से, ये फूल से, हमारे बिजनेस से, हमारी सारी जायदाद से बड़ी है। मुझे लगता है इसके बारे में सबको मिलकर सोचना चाहिए। And I think if we want to make a better world, we need a few better human beings. That's it. Thank you so much. So that thing. See, what I have understood is a few things cannot be revived and changed. You have lived your life, your upbringing is almost done. Now you cannot change your time, your life, your relationship with your parents in a way that you can go back to your childhood and you can change things which you never wanted in your childhood. That's what I said कि अभाव बहुत है हमारी जिंदगियों में। हमें लगता है कि ये सब हमें नहीं मिला। इंपॉर्टेंट ये है कि आज के जमाने में आप क्या दे सकते हैं अपने माता पिता को और अपने बच्चों को, दोनों चीजों को देखिए। बार बार उसी बात की कड़वाहट अपने पेरेंट्स के बारे में भी रखना इतना मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीटली उसको वाइप ऑफ कीजिए, कोई दुनिया में साधु नहीं है, आप किसी चीज को कंप्लीटली बदल ही नहीं सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको अपने इन-लॉज से किसी चीज में चिढ़ है, आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो जब आपका बच्चा स्कूल गया हो, उनके साथ बैठकर 1 to 1 बात कीजिए, बहुत नम्रता से और बहुत बैलेंस से। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो समझते ही नहीं है, तब मुझे लगता है कि वो नहीं समझते, वहीं से समस्या शुरू होती है। तो आपको पता ही है कि ये समस्या है, आपको धीरे धीरे समझाना है। आप जब आटा गूंथते हैं तो घड़ा भर के पानी डाल नहीं देते, आपको जितना पानी चाहिए आप थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और आटा गूंथता जाता है। हर चीज का एक वक्त होता है। आपने आज पेड़ बोया और आपको लगता है कि कल सुबह उसमें से आम टपकेंगे और अगले मौसम में आप आम खाएंगे, आपको भी पता है ऐसा पॉसिबल नहीं। उनकी जिंदगियां, उनके दिमाग, उनकी सोच सब उनके समय के साथ जुड़ी है। उनको लगता है आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको लगता है आप अलग जिंदगी जी रहे हैं, उनको लगता है आप ऐसे कैसे ये सब कर रहे हैं। Most of the in-laws feel that their daughter-in-laws are working so that they are not being able to give time to their children. सब सही है, वो अपनी जगह पर अपनी सोच के साथ जो सोचते हैं उनको सोचने दीजिए। उनकी सोच बदलने की कोशिश मत कीजिए, उनका बिहेवियर बदलने की कोशिश कीजिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उनकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बदलेगी। उनको सिर्फ इतना कहिए कि जब मेरा बच्चा आसपास हो, आप ये ना कहें कि तुम्हारी माँ पूरा दिन ऑफिस में रहती है, उससे मेरे बच्चे के और मेरे रिश्ते पर असर पड़ती है। मैं आपसे बहुत प्यार से विनती करती हूँ, और मैं एक माँ को ये विनती करती हूँ कि दूसरी माँ के सामने ये ना कहे। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम ये है कि हम सीधे, आपने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बच्चे के सामने, तो फिर उनका भी रिएक्शन ये है कि मुझे जो बोलना होगा मैं बोलूंगी। सिंपल है ये। हम जहां से शुरू, मैंने कहा ना, आप जो देंगे वही मिलेगा। ये दुनिया का अफर नियम है। इस बात को किसी भी चीज से जोड़ लीजिए आप। अगर आप अपने बच्चे की गैर हाजिरी में 1 बार, 2 बार, 3 बार अपनी सास को या अपनी मदर को, मेरी खुद की माँ मेरे साथ रहती है और वो मेरे बेटे को कहती है कि हर शनि रवि तेरी माँ नहीं होती है। My mother says that to my child. And every Sunday when I go home or whenever I am out
for traveling or working, I come home and I tell my child that I missed you. मुझे बहुत मजा नहीं आता यार जाने के लिए, लेकिन यही मेरा काम है, मैं क्या करूं? या मैं जाने से पहले कभी कभी उसको कहती हूँ मुझे बड़ा कंटाला आता है, मुझे नहीं जाना बेटा, पर तुझे छोड़ के जाना पड़ता है. This is the only work I know. I can't find a job in Ahmedabad. So this is what I know and this is what I'm doing. Wipe off. Very sweetly, very nicely. आप ये बात कभी मत भूलें कि आपका बच्चा एज अ मदर आपसे खून के रिश्ते से जुड़ा है. आपने 9 महीने उसको अपने अंदर रखा है, वो आपका हिस्सा है. दुनिया का कोई भी इंसान उसको आपसे अलग नहीं कर सकता. दुनिया का कोई भी इंसान उसकी सोच नहीं बदल सकता. पर आप तो वही बिहेवियर करते हैं जो दूसरे लोग आपसे करवाते हैं. उसने अगर कहा कि तुम्हारी माँ काम करती है इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहती है, और उसके बाद आपने उस बिहेवियर को पुष्टि करता हुआ बिहेवियर किया, आपने ऑफिस से आके उसको डांट दिया, उसको लगा हाँ मेरी दादी सही कहती. मत करो ये. और आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है. आज के बच्चे के पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप उससे नहीं लड़ पाएंगे. उसकी इंफॉर्मेशन को रोकना आपके बस में नहीं है. सो उस इंफॉर्मेशन को चैनलाइज कीजिए. वो क्या इंफॉर्मेशन पाता है उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस इंफॉर्मेशन का क्या उपयोग करवाते हैं अपने बच्चे से. कहां से बंद करेंगे आप? आपका बच्चा फ्रेंड से सीख के. मेरा बेटा, हम लोग एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग लगे, वी वर ड्राइविंग and somebody crossed my car like this, a little young boy on a motorcycle with a headphone. So बहुत नेचुरल उसमें मुझसे I just abused. So मेरा बेटा 10-11 साल का मेरे बाजू में बैठा था. उसने कहा माँ तू गाड़ बोली. अब मैं अगर ये कहूं कि मैं नहीं बोली तो मैं झूठी हूं. अगर मैं ये कहूं कि हाँ सॉरी तो भी मैं उसको कुछ दे नहीं रही हूं. So my defense mechanism started working. And I told him, I said, तने क्यों इतने खबर क्या ने गाड़ के वाय? Now he was on defense. अब उसे मुझे बताना है कि इसको गाली कैसे कहते हैं. तो उसने बड़े संकोच के साथ मुझसे कहा कि मोटा छोकरा हो ने बाथरूम में बोले. So now I know कि उसके साथ क्या चल रहा है. So I said, तुम्हारे साथ और तो कुछ नहीं करते बेटे बाथरूम में? He said, नहीं खाली हमसे गाली बुलवाते. So very good. इसको गाली कहते हैं बेटा, और कोई भी बोल सकता है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप याद रखें कि आप कहां बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं. मत बोलो. It's not a good thing to speak, but sometimes when you are frustrated और अगर आपसे निकल जाए तो कोशिश करो कि आप ये ना करें. I am also wrong बेटा, मुझे नहीं बोलना चाहिए. एक अजीब तरह का हमारे बीच में ब्रिज बनता गया. मेरा बेटा कई बार मुझसे पूछता था कि पापा बहुत गुस्सा करते, तुम सामने क्यों नहीं करती. वन डे आई टोल्ड हिम, हम लोग खड़े थे गाड़ी के पास और ऐसे सिग्नल पे बच्चा, उसी की उम्र का बच्चा आके भीख मांगने लगा. तो मैंने कहा तुमने इसको देखा? तो बोले हाँ. मैंने कहा तुमको इसको देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें भी भीख मांगनी चाहिए, कितना मजा आता है. तो उसने बोला नहीं. तो ऐसे एग्जैक्टली दूसरे को गुस्सा करते हुए देखकर आपको कैसे गुस्सा आएगा? वो बुरी चीज है, बुरी चीज नहीं सीखनी चाहिए. Such things go in your child's mind, and I think these are the things which you should work constantly logically on it. सोचते रहो क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट. क्रिएटिविटी इसमें लगाओ. उसके कौन से क्लास है और कहां वो क्या बन सकता है, उससे बेहतर है आपकी सारी क्रिएटिविटी इसमें डालो कि आप उसको एक क्या बेहतर परवरिश दे सकते. दिस इज व्हाट आई थिंक. थैंक यू. See, it's very important that you have put this in her mind initially. So undo will take, how old is your daughter? 7. 7. So till 6 you have taught this. So give her at least 6, 7, 10, 15 months to get rid of this thought. हम बहुत मोमेंटम से अगर उतरते हैं गाड़ी से या मोटरसाइकिल से तो या व्हील से, तो आपको लगता है कि अभी भी वो मोमेंटम ऑन है. एग्जाम्स के बाद थोड़े वक्त के बाद आपको, एग्जाम के दूसरे दिन आपको लगता है अब करने को कुछ नहीं है. वो मोमेंटम जो आपके साथ जुड़ा है, उस मोमेंटम को कम होने में समय लगेगा, पर उसे और कुछ दीजिए. उसको कहिए कि देखो यू हैव स्लोड डाउन बट वी कैन स्पेंड सो मच टाइम.
And tell her that your teacher is no one. I'm so sorry to say this on a school platform. But tell her that your teacher is no one to judge you. She will change next year. Very important is that do you enjoy slowing down? Yeah, Do you enjoy your spending this time with me? Do you enjoy what you are doing is good? Then enjoy. Don't expect other people to judge you. Don't accept other people to judge you. टीचर्स अगर बायस्ड हैं दूसरों की तरफ तो है, उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा ये सिखाओ. उसे ये मत सिखाओ कि टीचर को अपना बना लो. कितने साल टीचर को अपना बनाती जाएगी और कितनी टीचर्स और कितने लोगों को जीतने की कोशिश करेगी वो. Tell her that if you are enjoying this, it's fun. And if you are not enjoying and you want to get prepared and you want to answer in the class, let's work on it. Now it's her choice to do it. Now it's not your force to do it. If she is enjoying it, let her do it. कुछ लोग होते हैं, मैं हूं, मुझे बहुत दिन घर बैठना, मैं थोड़ी सी भी बीमार हो जाऊं तो मुझे लगता है अरे अरे कितने दिन वेस्ट हो गए. तो that's what I am. I am a workaholic by whatever reasons. So this is now my choice. Now nobody is pushing me to do this. Thank you, ma'am. So I think let her choose, and once she chooses, help her in whatever she has chosen. That's the only way you can deal with her in this. She has tasted the success. So now it's difficult. I work from 9 to 12 and 3 to 5 when I'm in town. I'm always there for lunch with my son. I'm always home in the evening at 5:30. And I think we all have that 24 hours day, but we make wrong priorities. When we don't have time, whenever you are feeling that you are not finding enough time, please check your priorities. I don't go to parties. I don't invite people more than whom I really love at home. My people have to come and see me in my office, however important it is. I generally don't check my mails after 5:30 and I am surviving. World has not collapsed so far. I don't answer phone calls. Right now I am not answering phone calls. Who has died? I don't know. We take our child out for dinner and we are on the phone. And we think, oh God, if we don't receive, what will happen? Nothing is going to go wrong. Nothing is going to change if you give 1.5 hours completely concentrated time to your child. And give that time and then tell your child कि जो बेटा 1.5 કલાક તારી સાથે મેં સંપૂર્ણપણે વિતાવ્યો, એક કે ફોન લીધો, કઈ બીજું કર્યું, ચલ હવે હું મારું કામ કરું બેટા. When my son was 5 years old, I used to tell him કે 1 કલાક મમ્માનો, મમ્મા તને 23 કલાક આપે છે ને, તું રાત્રે ઉઠાડે તો ઉઠું છું ને, તને કોઈ દિવસ હેરાન એવું તને મેં કીધું કે ના મને ઊંઘ આવે છે, પણ આ 1 કલાક મારો, go play, don't bother. And my son used to understand and he used to tell me કલાક થઈ ગયો. Why can't we do that? I think it's a very fine way to deal with your children. We only need to find out. That's why I said that every set of parents is different and every child is different. You have to constantly work on your relationship. Constantly, I am saying. તમારું બાળક પરણી જાય પછી પણ એને ત્યાં બાળકો થઈ જાય પછી પણ. હમણાં મને શોભાડે બહુ સરસ કહ્યું હતું. કંઈક વાત નીકળી, એની દીકરી છે અશ્વિની, she has just delivered a child and we were talking. So she was doing something with her child and I said she said it's her child. I have raised Ashwini. I don't want to raise her children. What a way of looking at life. If she asks, I'll tell her what to do. But if she is a new set of parent, let her do what she wants to with her child. I don't want to teach my child how to raise a child. હમણાં એક બહુ સરસ SMS આવેલો કે પતિ એવું મોટું થઈ ગયેલું બાળક છે જેને સાસુ સંભાળી નથી શકતી. એટલે એવું પણ થાય કોઈ વાર કે a mother is a mother of 3 instead of 2. There is one of 40 and one for 14 and one for 4. બધા 3 છોકરા હોય ઘરમાં. Work on your relationships. I think it's never ending process of life. Till you are alive, you have to keep working on your relationships. There is always a possibility of betterment in everything. And I think we need to do that. Because if I make you feel better, I will feel better in return by all means.
If I respect you, I'll get respect in return by all means. If I laugh, you'll laugh along with me. So let's do that. Isn't that better? Sorry. I'll tell you something. What was your first line? They are twins. No. You said my boy is very intelligent. I am not biased about... No, you have labeled. Without knowing, you have labeled. Your daughter must be having something very unique in her. Find out. The people who are not receiving awards are not good. The people who are not getting claps are not fine. People who are not making marks in life have no right to live. She is a fine person. She must be so good in something in life. Tell her that you are very good. You are very good at this. And teach her this. That receiving awards is not all about life. Listening to claps or winning is not everything that you can receive in life. But then my son will stop doing all those good No, things. why? Because that is his choice to do it. If somebody is winning, it's one's own choice. If somebody is slowing down, one is enjoying life, it's one's own choice. I work so much, and my husband is a person who wakes up at 12 in the morning, if he calls it a morning, and he does what he wants to. He works only when he wants to. And he says that I can survive in 2 jeans and 1 shirt. You are getting all this for yourself. Do it. If you enjoy every sari in a new show, buy for yourself. There is nothing wrong with the people who are not receiving awards. We have put it in their mind. In fact, you should tell your daughter that if brother is doing so much, we must go clap for him. Come on, let's do it. If we don't clap, he will not enjoy this award. Do that for your child. They are 2 different people. I'll give you a very simple example. You give a doll to a 3-year-old child, a girl child, and see how she treats her doll. For her, it's like a child. She will actually become a mother of 3-year-old. And you give a doll to a boy of 3-year. He'll try to see where the hand and legs are parted from. This is very simple. We have seen so many twins, especially when the gender is different. The entire behavior is different, and as a parent we feel we have raised them same, we have done this, we have done that. But there is a word called DNA, there is a word called one's own makeup. Why are you trying to make them same? Why are you pulling your daughter to the level where your son is? I'm not. She is feeling inferior. So tell her, as a parent, what you need to do is tell her that, oh, he's like this. He wants to run. Let him. We'll sit and watch him running. Everybody doesn't have to run. Then who will clap? If everybody of you want to come and speak here, then who will listen to whom? Let us all be there for each other. If he is receiving awards, tell her to clap for your brother. Tell her to enjoy his awards. Tell her to be proud of her brother. And tell her that you have something else in you. We are not the same. Why the faces are not same? Why the fingerprints are not same? We are all different people. And we must respect that individual emotion, individual difference that we have in each other. You must tell her to respect this, what the brother has, and tell the brother to never to tell her that I have received this and you have not. There is no comparison between 2 children. If you stop it, they will stop it. I am sure you must have not liked what I said, but this is the truth. Your first line was, my son is very intelligent. You have labeled already in your mind. And my daughter is average. They were your 2 lines. Please concentrate on what you said, and please rework on those lines. And I am sure you will find the difference. Your daughter must be good in something, in music, in dance, in cooking, in painting, in reading. She must be a better person. Focus on that. Groom that.
only awards on shelves make a person successful? I'm sorry, no. I'm sorry, no. This is what I have learnt and this is what I'm sharing. You may not agree. And we agree to differ. But this is what I have felt in life. I think we compare our own children, we compare our children with other children, and we make them inferior instead they feeling. Children have no inferior feeling. They have no feeling as called inferiority. गरीब से गरीब बच्चा फटे हुए कपड़ों के साथ अगर आया और पैसे वाले से पैसे वाले के बच्चे के साथ अगर 3, 4, 5, 7, 8 साल के हैं तो वो खेलते हैं और उनको पता नहीं है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. हम सिखाते हैं कि गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना. हम सिखाते हैं कि छी धूल वाला हाथ. वी टीच देम कि ये नहीं करना. अरे એની સાથે નહીં રમવાનું, આવા લોકો ચોર હોય, આવા લોકો આમ હોય. આ બધું આપણે આપેલું છે. એને તો ખબર જ નથી. તો એ તો એની મેળે જ જે શીખશે એના અનુભવથી શીખશે. This is what I feel. જી. Let us wind up the session. Yeah, last question, please. Quickly. Question. One single word I would like to share and speak, and that is the pain of everybody. IIT JEE. This is the word every parent is worried about. DPS school is giving so many extracurricular activities, and this is the only threat to the education system, ma'am. What is happening? We are telling that everybody is good in there, but everybody is rushing. सबको IIT कराना है, सबको इंजीनियर बनाना है. क्या और अदर फील्ड है नहीं क्या? उसके अंदर वो स्कोप नहीं है क्या? तो can't we have through? इस हॉल में कितने लोग इंजीनियर हैं? It's not like that, man. एक मिनट. I will answer you in a minute. इस हॉल में कितने लोग इंजीनियर हैं? वो मुझे सुन रहे हैं. मैं इंजीनियर नहीं हूँ. No. On this platform, I would like to request to you, because you are going in every seminar, create such an environment that this is not the only thing for your career. I cannot create that environment. That environment has to be created in your own niche, in your own family, in your own house. I can only request and tell you not to. That's it. Because the thing is, I understand we will not debate. We are running out of time, and importantly, what all I have said is this. मैडम जी. मेरा बच्चा बहुत स्पोर्टी है. केवल खेलने में उसका मन है. क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, तो उसकी पढ़ाई पे कैसे ध्यान दें? उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट है ही नहीं. सचिन के पास क्या डिग्री है, किसी को पता है? हम बिना बात के हर चीज को इतना महत्व देते हैं कि हमें लगता है कि जो उसे आता है उस पर ही फोकस करें. वो गलत है. डिग्री चाहिए सबको. मेरी डिग्री कभी किसी ने पूछी नहीं. इन्होंने इतना मेरे बारे में बोला, किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या पढ़ी हूं. किसी को पता भी नहीं है और कोई पूछता भी नहीं है. अमिताभ बच्चन क्या पढ़े हैं, किसी को पता है? सचिन क्या पढ़े हैं, किसी को पता है? लता मंगेशकर के पास क्या एजुकेशन है? रहमान कितना पढ़े? किसी भी फील्ड में एमएफ हुसैन कितना पढ़े थे? हम क्यों हमारे बच्चे के अंदर जो है उसे फोकस नहीं करते और उसे कुछ और देना चाहते हैं जिसको हम बेहतर समझते. थैंक यू. मत कीजिए ये अपने बच्चे के साथ. वो मुझे हमेशा से लगा है कि हम अपने सपने पूरे करने का साधन नहीं है वो. नमस्ते मैडम. जी, छेल्लो सवाल प्लीज. वील क्लोज बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. જી હા જી બોલો સાંભળું છું તમને. મારું બાળક 6 વર્ષનું છે. આર્થરાઇટિસ પ્રોબ્લેમ છે એવું છે ને હું એની 4 વર્ષથી ટ્રીટમેન્ટ કરું છું, પણ બધી જ ટ્રીટમેન્ટમાં એ રડતા આવે છે. એમને ડોક્ટરે એવું કીધું છે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ કમ્પલસરી છે, સ્વિમિંગ કમ્પલસરી છે, પણ સ્કૂલથી આવે એટલે બંને જ વસ્તુમાં આવવાની ના પાડે. પછી હું જબરજસ્તીથી લઈ જાઉં તો ફેમિલીવાળાને એવું થાય કે એ રડે છે તો પણ એની મમ્મી લઈ જાય છે.
45 મિનિટનો સ્વિમિંગ બેચ હોય તો હું પટાવીને લઈ જાઉં, આપણે 30 મિનિટ કરશું અને પછી તું આવીને રમજે. પણ એ હવે ઇન્ટરેસ્ટ રાખતો જ નથી. એને એજના બચ્ચા નીચે રમતા હોય તો એને નીચે રમવા જ જવું હોય કમ્પલસરી. અને સ્કૂલેથી આવે એટલે બધી જ વસ્તુમાં રડીને જ ચાલુ કરી દે કે હું આ નહીં કરું, હું આ નહીં કરું. ને મારા ફેમિલી વાળાને એવું થાય કે એની મમ્મી નથી કરવા માંગતો તો પણ એને સાથે લઈ જાય છે એમ. હું સમજુ છું આ વાત. કેટલાના છોકરાઓ બીમાર હોય ત્યારે રડાવીને દવા પીવડાવી છે? બધા જ, કોઈ બાકી નથી. ભેકડા જોડતું હોય મોટા અવાજે ને તોય બે પગ વચ્ચે દબાવીને બધી માઓએ દવા પીવડાવી છે. હું એવું માનું છું કે એને કન્વિન્સ કરો. હવે 6 વર્ષનો છે એટલે એને માટે અઘરું છે કે તમે એને જબરજસ્તી લઈ જાઓ. એને ક્યાં સુધી ઉચકીને લઈ જશો? એને એના રિપોર્ટ્સ બતાવો, એને બેસાડીને સમજાવો કે જો બેટા આ છે, તારે કરવું હોય તો કર, ન કરે તો પછી તું દુઃખી થઈશ. અને એને કહો કે તું વિચાર કરીને મને કાલે કહેજે. તમે આ કરી જુઓ, મને વિશ્વાસ છે કે તમારી સાથે આનંદથી આવશે. એક્સરસાઇઝમાં આવે તો એમના ડોક્ટર છે બીજા બધા પેશન્ટને એમનો એક્ઝામ્પલ આપતા હોય કે આ 6 વર્ષનું બેબીને મેં આટલા ટાઈમથી ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ પણ મોંમાંથી એક પણ અવાજ નથી કરતો ને એટલી સરસ રીતે ટ્રીટમેન્ટ લે છે. ઘરે આવ્યા પછી બધું સ્ટોપ, ઘરે કઈ જ એક્ટિવિટી નહીં કરવાનું, રડવાનું. પણ હવે એ તો 6 વર્ષના બાળક પાસે તમે 26 વર્ષના માણસની મેચ્યોરિટીની અપેક્ષા રાખો છો. એ તો નહીં થાય. એ જેટલું કરે છે એટલું કરવા દો અને થોડો થોડો ઇન્સેન્ટિવ આપીને વધારો. પણ મેડમ એ બંનેમાં હવે આવવાની જ ના પાડે છે. અમે એટલે જ મેં તમને કહ્યું કે તમે એને એના રિપોર્ટ્સ બતાવો, એની સાથે શાંતિથી ધીમે ધીમે એને કન્વિન્સ કરો. એ તમે જબરજસ્તી કરશો તો એ વિરોધ કરશે. એ જેટલો વિરોધ કરશે એટલી તમે જબરજસ્તી કરશો, એટલે તમે જેટલી જબરજસ્તી કરશો એટલો એ વિરોધ કરશે. આ વિશિયસ સર્કલ કોઈ દિવસ નહીં પતે. એકચ્યુઅલ જરૂરિયાત એ છે કે એને રિપોર્ટ્સ બતાવો, એને એમ કહેજો કે તું હા પાડીશ ત્યારે આપણે જઈશું, તું હેરાન થાય તો મને નહીં કહેતો. અને હું એવું માનું છું કે એકવાર 3 દિવસ ન જવા દો એને. લેટ હિમ ફેસ ધેટ પેન વન્સ. અને પછી જો એ જાગશે ને તો પછી એ પોતાની જાતે ખૂબ મહેનત કરશે. એને પેન થશે એના ડરથી તમે એને બહુ વધારે પેન આપો છો. એને બદલે એકવાર એને આ નાનકડું પેન સહી લેવા દો. So I think this is a better way of dealing, because he is a human being. એ ઓશિકો નથી કે તમે જબરદસ્તી ગાડીમાં નાખીને લઈ જાઓ, કે કૂતરું નથી કે તમે એના ગળામાં બેલ્ટ બાંધો ને કકડાટ કરીને થોડું આમ તેમ ખેંચીને પણ આવશે. એ બાળક છે. So please work on his mind than his body. That is what I feel. Thank you so much. I am very, very happy and very glad that so many parents are interested in their children. And the school is interested in the parents' interest. Most of the schools think કે ફીસ લઈ લેવી જોઈએ અને છોકરા ભણાવીને મશીન બહાર પાડી દેવા જોઈએ. આ વર્ષે કેટલા લોકો 12th માં ફર્સ્ટ આવ્યા, કે 12th માં કેટલા 1 થી 10 માં આવ્યા, એના સિવાય પણ જિંદગી છે એવું some school is thinking. And I think if there are more schools like this, the world is a better place. Thank you so much.